Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe. So far, we discussed about resistance, resistivity, and all other phenomena related to these two terms. Today, we discuss about the combination of resistors or resistances. Why we need to combine the resistances to get desired resistance. We combine the given resistance. Okay, we combine the resistances in two ways. First is your series grouping of resistances. That is the first hours. Now, what is the meaning of series grouping? So if we connect three resistances R1, R2, R3 as shown in figure, okay, so what we find that there is a battery V, ओके वी वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है तो यहाँ पे आई करंट पास हो रहा है तो R1 में से कितना करंट पास हो रहा है आई R2 में से कितना करंट पास हो रहा है आई आई R3 में से कितना करंट पास हो रहा है आई इट मीन्स if in a circuit current through different resistance is same, if current through different resistances is same और equal current pass हो रहा है then they are said to be connected in series. It means in series combination first point I remains same through different resistors, through different resistances. I remains same. Now if you find here the voltage drop, applied voltage क्या हमारा V है तो R1 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सपोज R1 पे हो रहा है हमारा V1, ओके R2 पे कितना हो रहा है हमारा V2, R3 पे कितना हो रहा है V3, okay, so what is the voltage drop across R1 V1 at R2 V2 at R3 V3? It means in a circuit if potential drop is different across different resistors then they are said to be connected in series. तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो क्या रहेगा कि V डिवाइड हो रहा है, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस is different across different resistances. कोई डाउट यहाँ पे? तो आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी. करंट क्या रहेगा सेम, वोल्टेज क्या रहेगा डिफरेंट एट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस. R1 पे कितना हो रहा है V1, R2 पे V2, R3 पे V3. नाउ व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. ये हमारा एम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इसके एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए
What is RS? RS is the equivalent resistance of this combination. Okay, now we have to find the value of this RS. Okay, so what can I write? V1 equals to IR1. Okay, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3. ओके, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3, अकॉर्डिंग टू ohms law V equals to IR. Clear? Now this is your equation number 1. We know applied voltage equals to distributed voltage. Applied voltage कितना है हमारा? V, and that is equals to sum of distributed voltage V1 plus V2 plus V3. ओके, और अगर अपन ने इसको RS हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया. ओके, तो व्हाट इज द V हियर? V इक्वल्स टू I RS. अगर यहाँ पे देखें तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? IRS. क्लियर? पुट दिस वैल्यूज ऑफ 1 and 3 in equation 2. I can write I RS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. I को कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा. RS equals to R1 plus R2 plus R3. That is, in series combination, equivalent resistance is equal to the sum of individual resistances connected in series. Okay, I think clear to everybody. Now suppose if n resistors are connected in series, जैसे मान लीजिए आपने okay, if you take n resistors in series, then RS equals to R1 plus R2 plus R3 plus and so on Rn. I can write it. I can write RS equals to sigma I equals to 1 to n R. That is the net resistance of series combination. अगर अलग अलग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn कनेक्टेड है सीरीज में, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n Ri. दैट इज आवर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. I think clear to everybody. Now we discuss parallel combination. Okay, so what is our second point? Now we discuss parallel combination of resistances. Okay, in parallel combination, okay, in parallel combination we connect resistances R1, R2, R3 like that. Okay, यहां से कितना करंट आ रहा है? I. ओके, इसमें कितना करंट गया? I1. इसमें कितना गया? I2. इसमें कितना करंट गया? I3. ओके,
फाइनली कितना हो गया हमारा I। तो अगर अपन ध्यान से देखें, इफ इन ए सर्किट करंट थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट, R1 में से कितना पास हो रहा है I1, R2 में से I2, R3 में से I3। ओके, अलग अलग रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहला पॉइंट जो हमारा बना, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर्स। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर वोल्टेज अपन V मान लें। ओके, ये V हो गया और ये क्या हो गया, जीरो। ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो गया V, और यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, यहाँ पे V वोल्टेज और यहाँ पे भी कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। तो अब इट मीन्स इफ वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज सेम, R1 पे भी कितना है, V वोल्ट, R2 पे भी कितना है, V वोल्ट, R3 पे भी कितना है, V वोल्ट, इट मीन्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगेन व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अपन ने वही किया, इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट इज योर बैटरी। ओके, V वोल्ट, ये रेजिस्टेंस RP ले रही है। ओके, RP इज द equivalent resistance of parallel combination. What is the current, I? Okay, clear to everybody? नोट कर लिया। तो डेफिनेटली I can write I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3, because according to Ohm's law V equals to IR। तो what is I, V by R। तो I1 कितना हो जाएगा, वोल्टेज V है, V upon R1। what is I2, V upon R2। what is I3, V upon R3। okay, this is your equation number 1। we know I equals to I1 plus I2 plus I3। we know I equals to I1 plus I2 plus I3। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, I equals to V upon RP। now put the values of I1, I2 and I3 from equation 1 and 3। I can write V upon RP equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। V कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने पे। I can write 1 upon RP equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ओके, तो इट मींस हाउ कैन वी सेट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दैट इज 1 upon RB equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अगर इसी तरीके से अपन n रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड कर दें, किस में ऐड कर दें, पैरेलल में, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई कैन राइट 1 upon
Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus and so on 1 upon R. I can write 1 upon Rp equals to sigma I equals to 1 to n 1 upon R. That is for n resistors. Clear to everybody? Now a very simple mathematics. You all of you know. Suppose we have two equal resistors in parallel. Okay, for example, okay, then I take two resistors, equal resistors, both have the resistance R and R. Then what is the 1 upon Rp equals to 1 upon R plus 1 upon R. It becomes 2 upon R. What is the Rp? R by 2. What is the equivalent resistance? R by 2. अब suppose मैंने एक resistance और लगा दिया, that is also having the resistance R. Then what is this formula becomes? Plus 1 upon R. I can write 1 upon Rp equals to 3 upon R. So what is the Rp here? Rp equals to R by 3. In general, if we have n equal resistors in parallel, what is my aim? If we have n equal resistors in parallel, then 1 upon Rp equals to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R plus कब तक? and up to n times. Okay, 1 upon Rp equals to n upon R. So what is the Rp? R by n. That is a simple formula. Sometimes help us. Okay, बजाय आपको कैलकुलेट करने के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R by n. अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा? Rp आ जाएगा. It help you to solve the numerical problem. Clear? Now I am giving a simple question to apply this formula. Now we solve a question. Okay, we have to find equivalent resistance between A and B. It is the example of mixed grouping. Okay, मैंने जो आपने 10th लेवल पे जो क्वेश्चन किए वो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आप कंसेप्ट को समझने के लिए वो क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, एक आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें. आप लोग वीडियो को सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखते हैं तो उससे वो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखें, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो आपको हेल्प करती हैं. ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट होगा इसी का जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको थोड़े से और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप उसको जरूर देखें. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें इस तरह क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे अपन एक बैटरी मान लेते हैं. ओके, एक V वोल्ट की बैटरी अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लगी हुई है. सपोज एग्जाम में गिवन नहीं है हमारे को, हमने मान लिया यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ से करंट पास होगा. अब इस पॉइंट पे अगर देखो तो करंट डिवाइड हो रहा है. इधर I1, तो सपोज इधर कितना है, यहाँ से I आ रहा है,
रिमेनिंग I माइनस I1। तो ये I माइनस I1 वो यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में क्या करंट पास हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है, बोथ आर इन सीरीज। क्लियर टू एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे करंट कितना रहा है I, सपोज इस पॉइंट के ऊपर देखें तो करंट मान लीजिए इधर I1 गया सपोज, तो रिमेनिंग कितना बचा I माइनस I1। तो I माइनस I1 वापिस घूम के आ रहा है, तो इन दोनों में करंट क्या पास हो रहा है, सेम। अब जो करंट सेम पास होता है दोनों किस में होंगे, सीरीज के अंदर। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, 20 ओम। ओके, so I can write like that, now both are in series, 10 plus 10 20। okay, now again we consider here a battery and there is the current I, suppose again, suppose here current is I1, in this arm there is current is I minus I1। okay, suppose there is the current I1, तो रिमेनिंग कितना बचा I माइनस I1। तो दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट क्या है, अलग अलग है, तो बोथ आर इन पैरेलल। तो आई कैन राइट 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10। आई कैन राइट 1 अपॉन R इक्वल्स टू 20 is the LCM 1 plus 2, 1 upon R equals to 3 upon 20, and what is R, 20 by 3 ohm। okay, what is R, 20 by 3 ohm। it means अगर अपन इसका इक्विवेलेंट देखें, अगर यहाँ पे अपन इसका इक्विवेलेंट देखें तो इन दोनों को रिप्लेस करके अपन कितना लगा सकते हैं, 20/3। दोबारा देखो ध्यान से, this is A and B। okay, this is 20/3 ohm, this is 10 ohm and this is 10 ohm। so now again we consider a battery here, so there is the current I, in this is current also I, and same current is pass here। तीनों में करंट क्या हो रहा है, सेम पास हो रहे हैं, डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आई कैन राइट आर एस इक्वल्स टू 10 प्लस 20/3 प्लस 10। okay, I can write 30 plus 20 plus 30 upon 3। okay, I can write 80/3, 80/3 ohm, that is the answer।